अभिलाष जी आईएएस खत्म करने के बाद अब इस रूप में नजर आएंगे। रॉ में आ गए और भी हैं, टीजर पे काफी देखे कि भाई सिविल सर्विसेज वाले सारे कैरेक्टर यही करेगा। मैं तो इनके डायलॉग इनको सुना रहा था, ये भूल गए थे। बुल्ला वाला सरफरोश की लाइन है कि फिर किसी सलीम से मत कहना कि देश सर आप दुनिया में जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं वो पैसे देके कर सकते हो, बट ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं ऑन सेट जो दुनिया में कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, वो सिर्फ privilege हमें मिला हुआ। Somewhere the character of Salakar, when you see him in 1978, he's also a rookie spy. He's not a trained James Bond. We didn't want to make a James Bond. We didn't want to make a rip-off of some Hollywood script or some Hollywood format. We wanted to tell a Indian story. With Mukesh ji, I was clear he is ZR even before we did a look test for him. So you're not committing to this series or Naveen being Ajit Doval? August is usually a very good month for the movies because कुछ फिल्में ऐसे होती हैं that bring you closer to your own nation. And I think there's a series that drops on Jio Hotstar on the 8th of August this year that's going to tell us what really happened. I'm not so sure, which is why I'm here to talk to director and actors of Salakar. Thank you so much, Farooq. Thank you, Naveen. And the legend, Mr. Mukesh Rishi. I'm so happy to talk to you, sir. Thank you so much for joining me. Farooq, I'm going to start with you and ask you straight off. How much of this series is fiction and how much of it is fact? See, fact is stranger than fiction, as they famously say. A lot of the research for Salakar has come through whatever has been available online. Okay. And by online, I just don't mean on the surface. Bilkul. I mean a deeper sense of research as to what it took for our nation, what it took for India to ward off an attack back during 1978. So there was already some literature available on the net on this. And when I did a deeper dive and research into it, the one thing that struck me really was, today we are in 2025, but what became very interesting to my mind was ke, yaar, what did it take without technology, without the resources we have today, what did it take for us to defend our nation back then, especially from the spy community of India? All these great stalwarts and officers who've worked behind the scenes and you don't hear much about them until that information becomes declassified over a period of time. And so I've kind of taken from that and created a own tale of what it took to, of course, a lot of this information that's out there is based out of a certain truth. Correct. But there isn't too much on it. And so, yes, a lot of it was from the real life research and to answer your question, and then part of it was fiction. Fiction, how interesting. So, you're not committing to this series or Naveen being Ajit Doval? Oh, no, not at all. Not at all? Not at all. Okay. We are saying that this is a tribute to many such spies of India. Okay, interesting. And it's not just Doval Saab, it's also legendary spies who we know publicly about, like R.N. Kao and so many other names, you know. So there is a little on everyone, and so one takes from that to kind of create and stitch your own story. I must say that the trailer has gotten, you know, a lot of great reviews, which is amazing. So नवीन, सबसे खास वाला कमेंट जो मुझे लगा वो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि अभिलाष जी आईएएस खत्म करने के बाद अब इस रूप में नजर आएंगे। रॉ में आ गए। I love it because look at your fans यार, वो तुम्हारी इस फिक्शनल जो लाइफ को है उसको जोड़ के तुम्हारी एक ट्रेजेक्टरी तैयार करें। इसके बारे में मुझे बताओ, क्या ये कमेंट तुम तक पहुंचा? क्या तुम ये कमेंट्स पढ़ते हो? नहीं, हाँ, मैं बिल्कुल कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और क्योंकि मैं शो के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, तो मैं तो इनफैक्ट हर थोड़ी देर में आई एम जस्ट चेकिंग कि ट्रेलर पे कोई और कमेंट आया या यू नो, तो हाँ, मुझ तक पहुँच रहे हैं और काफ़ी हैं सब, मतलब और भी हैं। टीज़र पे काफ़ी देखे कि भाई सिविल सर्विसेज वाले सारे कैरेक्टर यही करेगा, मतलब सब आई हैव गॉन थ्रू ऑल दोस कमेंट्स हियर। बहुत ही कि आईएएस से रॉ
हाँ जी, you know, IS हो IS से गया, IPS. IS, IPS, because Yeah. I'm an ex-IPS person in this. तो हाँ, apparently 5th attempt में मैं aspirants में IRS भी बना हूँ. जी तो हाँ, हाँ, अब जी IFS ही रह गया सिर्फ. IFS ही रह गया Yeah. है. This is amazing. इससे पहले कि मैं मुकेश ऋषि साहब के पास जाऊँ, I want to ask you the casting coup that you've put together, because I think it's wonderful. थोड़ी सी, you know, I think you should set the context, because मैं उनसे क्या पूछूं कि Yes. आपने ये शो क्यों किया. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि what was that like, that imagination that he should be Zia? मुकेश जी का तो I was very clear. Hmm. I don't know how or what sense, but with Mukesh ji I was clear he is Zia even before we did a look test for him. क्या बात है. So Mukesh ji was confirmed on the series Mhm. before doing his look test to see Mhm. कि ये Zia लगेंगे या नहीं. जी हाँ, I was sure ये लगेंगे. मैं बस एक बार सर से मिलना चाह रहा था जी हाँ. और मैं बस ये गेज करना चाह रहा था कि हमारी तबीयत मिल रही है कि नहीं. क्या बात है. whether we are being able to vibe with each other or not, and whether I as a director Hmm. will be able to work with him on set. How does he take instructions, because I had some very specific nuances for the character. Hmm. So I wanted to understand sir's openness, Yeah. because I had not interacted with him, but Mukesh ji was there giving me everything. Yeah. And so we immediately from the first meeting itself we connected. Mhm. And like sir was saying before this also कि I didn't have to say sir सोच के बताता हूँ, sir didn't say कि मैं सोच के बताता हूँ. We both were on That's Both were. amazing. from our first meeting That's amazing. कि हाँ ये हम कर रहे हैं, बस now let's figure out the rest. मुकेश जी, जब क्रूरता को स्क्रीन पर दर्शाना हो कि एक आदमी क्रूर है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन उस आदमी या उस कैरेक्टर को आप हैमी ना बनाते हुए डरावना बनाएं. तो ये लाइन आपने कैसे, और यू नो हाउ डिड यू वॉक दिस लाइन मेरे हिसाब से, क्योंकि डर लगना चाहिए इस आदमी से, लेकिन कभी उस पर हंसी नहीं आनी चाहिए. इसमें अगर हम फिल्म टू फिल्म जाएं तो इस सीरीज में एक बात तो जैसे सर ने कहा कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन द ऑफिस हमें पता था कि इस कहानी एक में, सेकंड, आपने इन्हें सर कहा. हाँ पता नहीं है मैं 2 बार भी कह सकता हूँ बिकॉज आई एम सो हैप्पी. देखिए जहाँ से गुण मिलते हैं ना आपको, और डायरेक्टर को के पास तो हमेशा सर ही है वो, क्या बात है. क्योंकि पूरा कितना कुछ उनके अंदर आके फिर हमारे पास पहुंचता, बाद जी में पहुंचता है. तो बिल्कुल. डायरेक्टर तो डायरेक्टर ही है. तो वो एक तो वो अंडरस्टैंडिंग वहीं बन गई थी मेरे को. और फिर जो लाइनें थी, वो जो लाइनें मुझे मिल गई थी, उसे पढ़ते पढ़ते जहाँ पे वो एक जगह आती है, शायद उसके बारे में आप मेंशन कर रहे, तो उसमें करते करते देखो डिस्कशन सर से हमेशा रहती है डायरेक्टर साहब से कि आप क्या चाहते हो, किस तरह चाहते हो. तो इनका जो बताने का तरीका था वो मैं फट से फॉलो करने में मुझे आसानी इसलिए होती थी कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग में ये तय था कि मेरे अंदर वो नहीं था कि पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा. जी हाँ, हम एक्टर हैं भाई, एक्टर जरूरी थोड़ा कि एक्टर हर चीज़ में अच्छा ही होता है, बिल्कुल. हर काम अच्छा कर दे. हर सोच जो डायरेक्टर की होती है, मुझे इस तरह चाहिए भाई, तो हो गया ना काम आपका, तो आपको उस तरह करना पड़ा. तो ये सबसे जो मुश्किल चीज़ थी वो सबसे पहले दिन हो गई. तो वहाँ जहाँ टूटना था, यहाँ जहाँ क्रोल लगना था, एक तो लाइनें आपको ये साथ देती हैं, फिर जो माहौल आपने क्रिएट किया हुआ था, बिल्कुल. जो आपने पहना हुआ था, जो मुझे मेरे बालों का जो लुक बनाया था, वो सब चीज़ें ऐड ऑन होती हैं उसमें बिल्कुल. करते समय. तो आपको सिर्फ देखना है कि किस लेवल पे सर खुश है, क्या चाहिए उनको. अगर वो लेवल मैच हो जाता है फिर उस वक्त आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती. नहीं होती. तो क्या वही हुआ मेरे साथ. क्या बात है. थैंक यू. It's truly a very very powerful performance. That's the word. थैंक यू. पूरा वही क्या? चीज़ आई सामने. इनकी लिखावट और शब्द बोलने में इतना मजा आ रहा था मेरे को, बिल्कुल. उसी में खेल था सारा. बिल्कुल. Naveen, you get to do a lot of action in this show. Yeah. My God. Yeah. स्लो मोशन पे जब हीरो गोलियां चलाते हुए नजर आता है, हर एक्टर ने अपनी जिंदगी में एक बार तो सोचा होगा कि यूं मैं तानूंगा ये रिवॉल्वर और मैं पिस्तौल से गोलियां. Was that exciting for you to be part of something that lends itself to action? Extremely exciting. है ना? I always wanted to fire a bullet, हम्म. but ऐसा स्लो मोशन वगैरह नहीं सोचा था. वो तो करने के दिन ही मुझे पता लगा कि वो कितना एडवेंचरस है ना? एंड अभी मैं फारूक को भी बात बोल रहा था कि
आप दुनिया में जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं वो पैसे देके कर सकते हो, यू नो, बंजी जंपिंग कर सकते हो, स्काई डाइविंग कर सकते हो, बट ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं ऑन सेट जो दुनिया में कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, वो सिर्फ प्रिविलेज हमें मिला हुआ है। बिल्कुल। एंड वो भी सबको नहीं मिलता, मुझको फर्स्ट टाइम ऐसा मिला है, एंड आई कैन टेल यू रोहिणी वो कितना, इट्स सो फन, यू नो, इट्स सो फन। दिखने में तो कूल लग ही रहा है, बट करते वक्त वो बहुत ही जिस किस्म का आप फील कर रहे होते हो, जैसे आपका हार्ट बीट चल रहा होता है, और वो शॉट करते वक्त मुझे ये पता नहीं था कि पीछे गाड़ियां भी फूटेंगी। हाँ जी। मैं सिर्फ फोकस कर रहा था कि मैं गन ढंग से चलाऊं, इन 3 बार मुझे चलानी है, 4 बार मुझे चलानी है, एट दीज पॉइंट्स आई हैव टू फायर। I didn't know about it. So I think the reaction came out because there were a lot of things going on around me. पीछे ग्लास फट रहा है, I didn't know about it जब मैं पहली बार दौड़ा उसमें। तो वो मतलब I think बहुत experience wise it was हमने very cool. purposely नहीं बताया था नवीन को। सरप्राइज। हमने नवीन को बताया नहीं कि आपके पीछे गाड़ियां और कांच फूटने वाले ये जब भाग रहे थे तब इनको रियलाइज हुआ। बिल्कुल, and that is such a genuine reaction, right? And I hope that you reacted all in character, you know, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है as a good actor. You have a casting coup, okay? I love Surya as an actor. I think he's fabulous. Moni's in the show as well. What was it like to actually bring this cast together? आपने इन दोनों की तो actually आपने मुझे नवीन के बारे में नहीं बताया, आपने सिर्फ मुकेश जी के बारे में बताया. So I sometimes like casting against the grain. So I was looking for an actor also who doesn't have a very rigid set typecast to him, who is still a little open and moldable. I wanted an actor like this. The reason that I wanted an actor like that was because somewhere the character of Salakar, when you see him in 1978, he's also a rookie spy. He's not a trained James Bond. We didn't want to make a James Bond. We didn't want to make a rip-off of some Hollywood script or some Hollywood format. We wanted to tell a Indian story. And so because I wanted that man, that spy to be still a little rookie, maybe make us little mistakes, I was looking for a sense of vulnerability also in an actor. Which when I met Naveen, I found in him, or I could see in him. I could see that sense of vulnerability. I could see here is a very honest actor who wants to be an actor because he likes acting. So true. He is not into the fandom, get papped all the time and do this and position yourself. He just likes acting. And so therein comes his truth from. And so that also then works for me, right? Because I'm dealing with an actor, I'm not dealing with a guy who only wants to be a star. In fact, I'm dealing with a guy who's saying, are you sure I'll look fine doing this? How cute. How cute, yeah, right? And I'm like, yeah, just you just, do it in this kind of a manner and it'll come out very suave. Don't worry about it. How lovely. And so I think those were the things that attracted me towards Naveen being in this cast. And then I knew that, like Mukesh sir was also saying, it's a great help, at least for me as a director, when an actor can surrender to me. Then I'll be responsible enough to make sure कि हमारी जुगलबंदी जो है एक एक्टर और एक डायरेक्टर की जो गिव एंड टेक होता है वो असल में उनके सरेंडर से मेरे लिए फिर ज्यादा आसान हो जाता है. वो भी एट ईज हो जाते हैं, मैं भी एट ईज हो जाता हूँ. Then there is no ego when you're creating. Yeah, absolutely. Because both people have surrendered to. I have surrendered. इतना surrender किया कि भाई अब तक मुझे रखी है इन्होंने. मतलब हो गई ना शूट आपकी. नहीं कैरेक्टर में है ये. अभी तक सरेंडर किया हुआ है. अभी तक सरेंडर किया हुआ है. तो are you shooting season 2 right? शादी कर डाली मूंछों में. शादी कर डाली मूंछों में नवीन. किरदार को फील करने के लिए. वो तो मैं कहा कि फारूक इतना जल्दी बच्चा नहीं हो पाएगा, बट मतलब how do I feel like a father? No, it's great. It's great. I think you have given this to him. He's kept it. He loves it. We've all given something to each other. Yeah. And hopefully that will come across when this series is hopefully appreciated by the audience. But Surya Sharma is also a fab actor. He's so good. He's also a person I like very much. मेरे लिए हमेशा रिंकू पाजी रहेंगे, but anyway. और आपको and Moni of course also, the good thing is that in this series we've not done
with Moni necessarily something which is glamorous Mhm. or sultry in that sense, because But usually you can't that's help it. Moni Roy, you It's can just so wear beautiful. absolutely the Yeah. plainest clothes and Yeah. you will still be glamorous Yeah. and you will still be sultry. Yeah. She just has that quality. Yeah, she's just a very, very pretty, Yeah. pretty woman, but she's also very pretty soul. Yeah. She's just a lovely person. And again, in her also, I could see that sense of vulnerability. And I would like to give credit to Mukesh sir, Naveen, Moni, Surya, Moni also, especially in this case, because we're particularly talking about her, is that she's so hungry to do good work as an actor. Yeah. Image वगैरह तो ठीक है, that's already set, right? People already know her to be a very glamorous, beautiful girl. But the fact that when you interact with, because I interacted with her as a director and an actor, right? She's very hungry to do good parts, to dig her teeth into A role. Yeah. a role, into a part as an actor. And thankfully for me, I was lucky that all the actors, Mukesh sir, of course, because he carries that beautiful old school values which I still relate to. Naveen, of course, because that's just his upbringing. Yeah. Now, Surya in his own way, Moni also. All these actors, I'm really happy. They're all very well-behaved people. Beautifully said. So, when an actor is also generally a well-behaved person in life, no, it doesn't not just make my life good, it makes the environment of the entire set nice and I'm better. sorry, I'm really laughing because it's so underrated. It's so true. Yeah, just basic manners are so Manners, underrated. Yeah. People being graceful with others, Yeah. people being well-mannered, not throwing their weight around, neither as Moni or Surya or Naveen or Mukesh sir. And they could have, right? Like in their own little moment of irritation, they could Of have. course. But it's never happened, and that's such a good environment to be in, you know. Amazing. क्योंकि मैं वैसे ही ताव में घूम अच्छा तो रहा हूँ आप हैं. नहीं I'm just kidding. You know, I want to ask the two of you, what is it like जब आप दोनों पहली बार एक सीन क्रिएट कर रहे थे जहाँ पर शायद आप दोनों को एक दूसरे की एक्टिंग से आप दोनों एक दूसरे से वाकिफ ना हो, तो उस दौर में या उस पल में मुझे ले जाएं जहाँ पर शायद आपने एक दूसरे को समझा और ये सीन क्रिएट किया. डू यू हैव एनी मेमोरीज ऑफ नहीं, दैट? मैं तो बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ. मैं तो वाकिफ तो उनका काम देख हाँ, के, मैं लेकिन तो इनके डायलॉग इनको सुना रहा था, ये भूल गए थे. उनका बुल्ला वाला. सरफरोश की लाइन है. ओह फिर किसी सलीम से मत कहना कि देश Sir. Yeah, I mean, we've had the privilege of having Mukesh ji. 2 स्क्रीनिंग हमने की थी, एक गुप्त की और दूसरी सरफरोश की, और दोनों में बाप रे, आई थिंक वो तो आइकॉनिक लाइंस हैं. लेकिन एज एन एक्टर यू बीन पेयर्ड विद हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? व्हाट इज इट लाइक? इनके सामने इनकी तारीफ कर दीजिए. सी मैं इनकी एनर्जी से ही बहुत, इनका प्रेजेंस इंटिमिडेटिंग है, बट वंस यू सिट विद हिम ही इज अ वेरी वार्म पर्सन. यस, मतलब बहुत जेंटल जायंट. हाँ, जेंटल जायंट, बहुत ही अपनापन है. जी हाँ. तो वैसा मैं फील करता हूँ. तो इट्स इजी टू बी योरसेल्फ विद हिम, यू नो. सो वो तो था ही, और वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हो जाता है इफ़ यू हैव टू क्रिएट अ सीन टुगेदर. तो हाँ, और रोहिणी करते वक्त उनका जो अप्रोच है ना, वो इट्स एज इफ ही इज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. वो ऐसा मान के नहीं चलते हैं कि आई नो एवरीथिंग. वो पूरा नीचे से उसको अटेम्प्ट करते हैं ताकि वो बेस्ट डिलीवर कर पाए. ही इज कॉन्स्टेंटली एट इट, ही इज गिविंग हिज बेस्ट, और मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो इट्स लाइक ऑन सेट 2 एक्टर्स सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. थोड़ा एडवांटेज भी रहा कि जो खाली समय था हम लोग बैठ के बात करते थे. अब मैं बताता हूँ कहाँ से क्लिक होना शुरू हो गया. जब पहली बार किसी को आप मिल रहे हो एज एन एक्टर और वो अपनी शादी की बात आपसे पूछ रहा है, कर रहा है, वो जो टाइमिंग थी ना, वो मेरे लिए जो इसके लिए रिस्पेक्ट समझो, एक छोटे भाई की तरह. तो मैं बोला यार कुछ पूछना चाह रहा है, कुछ डिस्कस कर रहा है. वो कहाँ डिस्कस होता है? जहाँ आप एकदम कंफर्टेबल होते हो. तो वहाँ से सारा कैरेक्टर ये समझ में आ गया मेरे. वरना हम लोग इसी में मार खाते हैं, हम जानते ही नहीं एक दूसरे को काम कर रहे हैं. क्या बात है, बिल्कुल. वो भी सिचुएशन होती है, हमने देखी है. और हमारा काम है निकलना, क्योंकि ड्यूटी है हमारी. तो वो जब वो उस तरह की बातें की ना, तो इसका पर्सनालिटी और इसका जो काम था मेरे साथ जो वो भी इसी तरह के थे कि ये आदमी क्या कह रहा है मेरे को,
क्यों बुला रहा है मुझे घर पे, ये क्यों दिखा रहा है मेरे को। तो वो सारा मुझे वहाँ इसका कैरेक्टर दिखना शुरू हो गया। जब आप घर की बात, तो इजी हो जाता है जब अंडरस्टैंड करते हो। जैसे पहले मुलाकातों में सर को एकदम समझ गया, मैं इसको समझ गया, फिर परफॉर्म करने में इजी हो जाता है। जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट है, मेरा एक सीन है, जब इनके ऑफिस में मैं आता हूँ, जो गोली चलने के बाद, तो मैं अपनी लाइनें बोल रहा था। सडनली ही रियलाइज कि कुछ मिसिंग है। देन ही मुझे नहीं कहा, ही वेंट द प्रॉपर चैनल। डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा कि मैं फट समझ गया ये क्या कह रहा है। इसका कहना है मुझे को लाइनें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, उसके ऊपर रिएक्शन आने हैं। तो जब इसका क्लोज अप आएगा तो रिएक्शन जो है ऐड ऑन हो जाएंगे उस बात को। तो जब आप इतनी काफ़ी सारी ये अंडरस्टैंड इतना काफ़ी है कि आपको पता चल जाता है कि एक्टर किस लेवल का है। तो उससे फिर वो कंफर्ट जो है ना, वो उसमें कभी ये नहीं आता कि सर ऐसा कुछ हो जाए, मैं कहूँ तुम ऐसा कुछ कर दो। वो ईजी हो जाता है, एट ईज हो जाते हो, आप उसको माइंड नहीं करते। तो ये जो हमारे तीनों में ये जो बना है ना, रिश्ता जो बना है, वो मुझे लगता है कि उसने बहुत हेल्प किया ये सब काम करने में। क्या बात है, इट्स सो लवली, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट, बिकॉज आई रियली वांटेड टू बी अ फ्लाई ऑन द वॉल, स्पेशली जिस सीन की बात आपने की, शायद ये सवाल किसी ने नहीं किया जो मैंने अभी जवाब दिया। शुक्रिया। हाँ, मुझे ऐसा लगता है मैं बातें भी इसलिए कर पाया कि कई बार आई मीन देयर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट सीम अप्रोचेबल, you know. I don't think Mukesh sir had that vibe. बन गया ना मैं इसका सलाहकार। हाँ, तो actually yeah, तो वो उनका vibe ही ऐसा था कि it was very easy to talk to him. तो और मैं बहुत बातूनी आदमी हूँ जनरली, तो अब सर थे, मैं तो इनमें भी बहुत इंटरेस्टेड था, you know, मुझे सरफरोश की बातें भी करनी थी और मुझे गर्दिश की बातें करनी थी, तो हाँ, तो मैं तो इनसे बातें कर ही जा रहा था। ये पूछना, ऑफ कोर्स वी आर रैपिंग अप द इंटरव्यू, बट ये पूछना कि आपका सवाल क्या था शायद बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाए, एंड आई एम नॉट दैट पर्सन, लेकिन ये जरूर पूछना चाहूंगी कि सलाह क्या दी थी आपने? इसकी सारी बातें सही थी। क्या बात, सब बातें सही रास्ते पे चल रहा था। आपने शादी की क्या सलाह दी नवीन को शादी करने से पहले? ये पूछना चाह रही हूँ। ऐसा डरना नहीं, गो अहेड। डरना नहीं, गो अहेड। व्हाट आई रियली लव्ड इस इंटरव्यू में बात करते वक्त आपने एक पॉइंट पर कहा कि इट्स माय ड्यूटी, एंड आई थिंक दैट्स सो ब्यूटीफुल, बिकॉज अगर हर एक्टर यही समझे कि इट्स माय ड्यूटी, it echoes also what your show is about, because this is about duty, and with that of course I'd like to say thank you so much आप मेरे साथ बैठे आज। Hi guys, मैं हूँ नवीन कस्तूरिया। हमारा शो सलाहकार जो हॉटस्टार पे आ रहा है 8 अगस्त को, देखिएगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुकेश ऋषि और हमारा ये शो जो सलाहकार है जियो हॉट स्टार पर आ रहा है। एक प्रॉमिस करना चाह रहा हूँ कि आप अकेले नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरी फैमिली के साथ देखेंगे तो आपको खुशी होगी।